Yeah. Yeah. Good afternoon, Sandhya. Good afternoon to everyone. Good afternoon, Vandana. I hope my screen is visible. Yes, ma'am. Okay, so let us have a quick revision what we did in the last class. Okay, so how many rules of counting we are having? Yes, good morning, Pratham. Good afternoon, sorry. Yes, how many rules of counting we are having, students? Am I audible? Hello? Ma'am, 3. 3 rules of counting, okay. Can you tell me, Vandana, what are they? Okay, I got one answer in the chat box. Akash is also saying 3. Akash, name them. What all 3 rules we are having for counting? Vandana said 3. Akash is also saying 3. Can you tell me what are they? We are having only 2 rules of counting, students. One is or. Or means what? Which operation is this? Or always means what? Addition. And the second rule of counting we are having is and. And always means what? Multiplication. All right. To explain this, I had taken one example. Suppose you are having 3 pens, P1, P2, and P3, and 2 markers, M1 and M2. And if I ask you to pick any one of the item, what you will do? How many options you are having to pick any one item out of these 3 pen and 2 markers? So either you can pick pen 1, or you can pick pen 2, or pen 3, or you can pick markers also, marker M1 or marker M2. So you're having 5 choices, or you can say 5 ways you can pick any one of the item. All right. But if I ask you to pick one pen and one marker, then in that case, how many choices you will have, or how many choices you will get? If I ask you to pick one pen and one marker, how many possibility or how many choices you will get? So either you can pick pen 1, suppose pen का पहले हम selection करते तो either I can pick pen 1 P1, or I can pick P2, or I can pick P3, right? और की possibility है क्या हमारे पास pen pick करने के लिए? I'm revising, students, come on, respond. How many choices? तो ये पहले तो आपको counting आनी चाहिए, students, to understand permutation and combination. So I'm just revising what all things we have done in the previous class. So in the first question, I asked you in how many ways you can pick any one of the item from these 3 pen and 2 markers. So you gave me answer 5. 5 choices you have. Wherein in second question, I asked you to pick any one pen and one marker. So the word and has come over here. So either you can pick up pen 1 or pen 2 or pen 3. Suppose आपने pen 1 pick किया है, तो उसके साथ आपके पास marker के लिए कितने choices हैं? Either you can go with marker 1 or you can go with marker 2. Correct, no? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. So आपके पास choices क्या आ गई? पेन 1 के साथ marker 1 M1 हो सकता है, या फिर पेन 1 के साथ marker second marker हो सकता है. तो here you got 2 choices. Okay. Then pen 2 अगर pick किया तो again you are having 2 choices for marker. Okay. So 2 possibility again you will get. So again I got 2 possibility. And if I pick pen 3, then again I'm having 2 choices for picking up the marker. So in all, how many choices we get? In all, we get 6 choices. No, 6 choices we have to pick any one of the pen and any one of the marker out of 3 pen and 2 marker. You getting my point, students? So ये हम क्या कर रहे हैं? हम काउंट कर रहे हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, कितनी चॉइसेस बन सकती है अगर हमारे पास 3 पेन और 2 मार्कर हो और हमें कोई एक पिक करना है. ओके. So is there any easy way to calculate, or is there any easy way to find out ki how many possibilities are there instead of counting all the possibility? Every time writing all the possibility will not be possible, no? Come on, students, speak up. Am I going fast or you're not getting it?
What happened, Yesha? You're also not responding today. Hello, am I मैम एक audible, Yesha? मैम एक फॉर्मूला है ना, उसमें नंबर ऑफ Yes. पेज के लिए देता है, मतलब समझो कि 12 सी 2 करके ऐसे रहते हैं ना, मतलब वो अप्लाई कर 12C2. सकते हैं इसमें। हाँ ऐसे हाँ बच्चा, एग्जांपल दे वो रहा उस पे हम आएंगे, तो वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन यही हेल्प करता है। ये जो हम काउंटिंग कर रहे हैं ना, हम तब लिख लिख के, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इजी बन जाता है। पहले आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आज मैं फॉर्मूला दूंगी जिससे हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा, बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या कर रहे होते हैं। जो परमुटेशन 12P5 लिखते हैं, 12C2 लिखते हैं, वो उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। टू अंडरस्टैंड दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग काउंटिंग। तो पहले काउंटिंग कैसे करते हैं वो समझ जाओ, फिर हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन फॉर्मूला तो है ही हमारे पास करने के लिए, यूज करने के लिए। ओके, या so is मैम। there any easy way? तो I was asking that. So I had to select one pen out of 3. So one pen select करने के लिए कितने choices है? 3. And I have to select one marker also. तो हम word क्या use कर रहे हैं? And means which operation? Addition or multiplication? और And yes, correct है। So addition कब आएगा? जब और वर्ड आएगा, और हम क्या यूज करें इधर? I have to pick one pen and one marker. So and आया तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन आएगा। एंड मार्कर चूज करने के लिए कितने चॉइसेस हमारे पास? 2 चॉइसेस। तो इसलिए 3 into 2 कितना हो गया? 6। देखा, आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दी पॉसिबिलिटी, ऑल दी चॉइसेस, है ना, हर बार चॉइसेस लिखना पॉसिबल नहीं होगा ना। इधर तो 3 पेन और 2 मार्कर्स है, तो इसलिए आप सारी चॉइसेस, सारी पॉसिबिलिटी लिख पाए। बट अगर व्हाट इफ एडवांस प्रॉब्लम मिल जाए, बड़े बड़े नंबर्स हो जाए, तो इन दैट केस थोड़ा काउंट करना डिफिकल्ट हो सकता है। Okay, and then we had taken questions on forming numbers, how many 3-digit numbers we can form, how many 3-digit odd numbers or even numbers we can form. Okay, how many digits, how many 3-digit numbers greater than 200 we can form. These many questions we had taken in the last class. Okay, so one more question I'll be taking on forming the numbers, and then we'll proceed to the anagrams, and then arranging people, then permutation combination we will see. Okay, so this is the question, students. I'll just increase the font size, and then you all should be able to answer. And I expect that you all will answer, okay? Come on, don't disappoint me now. Try to answer and tell me. I hope the question is readable to all of you. या मैम। Okay, so yeah. So I'll just read out the questions for you. How many 4-digit numbers can be formed with 10 digits? So हमें 10 digits दिए हुए हैं. What are they? Tell me. What 0 are 1 they? 2 Yes. 5 6 So we are given 10 digits. So I'll just write down. Everyone pay attention. Very easy they are. यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बस इधर उधर नंबर्स चेंज कर देते हैं। इधर हमें 10 डिजिट दिया है। Yesterday I took only 5 digit, and using 5 digits we were forming 3-digit number. But only the number gets changed, the concept remains the same. So since we are given here 10 digits, they are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. All right. So we are given 10 digits. 0 से लेकर 9 तक कितने हो जाते हैं? 10 digits हो जाते हैं। अब आपको क्या बोल रहा है कि आप you have to form how many digit numbers? 4 digit। You have to form 4-digit numbers. So हमें 4-digit number form करना है। ठीक है, so I'll just make 4 slots over here. ठीक है, हमें 4-digit number form करना है। अभी 4-digit number कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं ना, 4132, 2132, 2243, है ना? Yes or no? ऐसे दिखेंगे ना 4-digit number? Tell me, is this a 4-digit number? यस मैम। 0321, is it a 4-digit number? No, ma'am. 0 आगे आपके रहेगा ना। 0 आगे लिखने का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है, राइट? आप आगे नहीं है। कितने भी 0 इंट्रोड्यूस करते हो, ये हमारे क्या हो गए? ये 3-digit नंबर कहलाएगा, ना कि 4-digit नंबर कहलाएगा। ओके, सो दैट मींस फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है। डू यू अग्री विद दिस? यस मतलब मैम। हमें ऐसे टाइप के नंबर वी कैन नॉट कंसीडर जहां पे क्या होगा, ये फिर क्या हो जाएंगे? 3-digit नंबर हो जाएंगे फिर। सो फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट यू शुड नोट डाउन हियर। वेरी गुड श्रद्धा। अगर आप अनम्यूट करके बोलेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा।
समझ में आ गया that you're responding and you're paying attention. Every time opening a chat not be possible, and sometimes it's possible that I ignore that. Okay, so try. So what I was saying, so first now we the first slot fill करने के लिए आपके पास कितने choices होंगे? You have to form 4-digit number. So कितने choices होंगे? फर्स्ट प्लेस में तो कोई भी नंबर आ सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में कोई भी नंबर आ सकता है. 0 आ सकता है क्या? नो मैम. 0 नहीं आ सकता है, तो मतलब 10 में से एक डिजिट चला गया, बचे कितने डिजिट? 9. 9. तो मुझे फर्स्ट स्लॉट फिल करने के लिए कितने चॉइसेस है मेरे पास? आई हैव ओनली 9 चॉइसेस. तो इन 9 ways I can fill the first slot. I can fill 1, I can fill 2, or I can 3 or 4 or 5 or 6. तो what और यूज कर रही हूँ ना मैं, that's why I'm adding all the possibilities. तो 9 ways है. फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि repetitions or not repetitions are allowed. Okay, फर्स्ट में से कि repetitions, मतलब जो भी आप डिजिट इधर डालो और वो डिजिट क्या कर सकते हो, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ स्लॉट पे आप रिपीट कर सकते हो. तो बताओ सेकंड स्लॉट को फिल करने के लिए भी आपके पास कितने चॉइसेस होंगे? इनके आंसर ना, रिपीटेशंस आर अलाउड. मैम फिर से 9 क्वेश्चन ways. बोलो. जस्ट रिपीट वन मोर टाइम. ओके, यू हैव टू फॉर्म 4-digit नंबर. आपको क्या करना है, 4-digit नंबर फॉर्म करना है. तो इसे मैंने 4 बॉक्सेस ड्रॉ किए. ठीक है, 4-digit नंबर. ठीक है, हमारे पास डिजिट्स कितने दिए गए? 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट्स हमारे पास. ये तो ये 10 डिजिट से क्या करना है, नंबर पे fill करने के लिए you have got 9 choices. Okay, you have got 9 choices. Now अभी एक डिजिट चला गया and repetitions are allowed. अगर रिपीटेशन अलाउड है तो सेकंड बॉक्स करने के लिए या फिर सेकंड स्लॉट फिल करने के लिए कितने चॉइसेस? 8 मैम 10 8 होगा. 8 होगा. रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशंस अलाउड. 10 choice. 10 चॉइसेस होंगी. यू श्योर 10 चॉइसेस कैसे आ गया? 10 कैसे आ गया? मैम रिपीटेशन है मींस हम लोग 1 1 भी ले सकते हैं ऐसे. हाँ, तो सपोज इधर 1 डाला तो इधर 1 आ सकता है. ठीक है, तो 9 चॉइसेस ही होनी चाहिए ना. फिर 10 कैसे कह रहे हो? हम लोग 0 भी ले सकते हैं इसलिए. Yes, we can take 0 also. Maya, is this clear? Choices कैसे आ गई? Do I need to repeat it again? No ma'am. Okay. Now, तो now third slot fill करने के लिए अभी कितने choices होंगे हमारे पास? Since repetitions are allowed. Since repetitions are allowed, तो हमारे पास again choices हो जाएंगी. Okay, हम डाल सकते हैं whatever digits have come to the first slot and second slot, they can also be put up in on the third slot. So 10 again, ways. we are having 10 choices. Very good. And for the last, how many choices we are having? Again, 10. Okay. Now इनके बीच में क्या आएगा? Multiplication आएगा, addition आएगा. What do you think? Multiplication. Yes, why multiplication? Because I have to fill the first slot and second slot and third slot and fourth slot because I have to form 4. So I don't have any other option. Option मतलब क्या जाता है और हो जाता है. So I have to fill this all the 4 boxes, all the 4 slots. That means and is coming. So that means I'm going to multiply all these possibilities. So कितना आता है आंसर? 9,000. So आप 9,000 4-digit number form कर सकते हो if the repetition is allowed. 9,000 4-digit numbers you can form. I hope the first question is understood to all of you. Shall I proceed to the next question? Yes, ma'am. Now try to, if you have understood the first question, try to answer the second question. You have to form again, you are given 10 digits, 0 to लेकर 9 तक आपके पास 10 digits है, and repetition this time is not allowed. Second question में क्या वाला? Repetition not allowed. तो अभी क्या करोगे? How will you form the 4-digit number? तो फर्स्ट स्लॉट फिल करने के लिए आपके पास कितने चॉइसेस हैं? 9 Given choice. digits are what? 0 1 2 up to 9. Why 9?
0 से लेकर 9 तक तो 10 डिजिट्स होते हैं. Why you saying 9 But take choices? 0. Because we cannot take 0 as the first slot, we cannot take 0, so we are having only 9 choices, so 9 ways open. Now since repetition is not allowed, तो second slot fill करने के लिए कितने choices हो गए आपके पास? 9 choices. Why 9? 8 होना चाहिए ना? मैम अभी 0 allowed है. Yes, अभी 0 हम इंक्लूड कर देंगे तो इसलिए क्या हो जाता है, 9 ways हो जाता है. ओके, पे अटेंशन. 0 से लेकर 9 तक होता है 10 डिजिट्स, बट सिंस फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, तो इसलिए 9 चॉइसेस होंगी. एक डिजिट सपोज इधर 1 चला गया, एक डिजिट चला गया, बच्चे कितने अभी 8, और 0 भी अभी इंक्लूड, बिकॉज सेकंड स्लॉट पे 0 भी आ सकता है. तो वी आर हैविंग 9 चॉइसेस टू फिल द सेकंड स्लॉट. अभी 2 डिजिट चले गए. टू फिल द थर्ड स्लॉट हाउ मेनी चॉइसेस वी आर हैविंग नाउ? 8. 8 choices. ओके, तो 8 नंबर में से कोई भी नंबर इधर आ सकता है. एंड फॉर द लास्ट स्लॉट हाउ मेनी चॉइसेस आर लेफ्ट? 7. 7. ओके, तो इन ऑल कितने हो जाएंगे? इन ऑल कितने डिजिट्स आप बना सकते हैं व्हिच ऑल द नंबर्स विल बी डिफरेंट? ऑल द डिजिट्स विल बी डिफरेंट. 9 into 9 into 8 into 7. सो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, व्हाटएवर इज द आंसर, दैट मेनी now 4 digit numbers we can form in which all the digits will be distinct. like ऐसा नंबर आपको फॉर्म मैम करना है. एक डाउट है, मीन्स हाँ वो बोलो बेटा. एक और एक बार बोलो, बोलो. 9 कैसे आया? सॉरी, 9 कैसा है? सेकंड स्लॉट पे 9 कैसा है कि फर्स्ट स्लॉट पे? सेकंड सेकंड स्लॉट पे. अच्छा बताओ, 0 से लेकर 1 2 अप टू 9 कितने डिजिट्स होते हैं? 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं. ठीक है, वेरी गुड. हमें क्या फॉर्म करना है? 4 डिजिट नंबर. करेक्ट, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है हमें. तो जो फर्स्ट स्लॉट है क्या वो 0 हो सकता है? नहीं, मतलब वैल्यू नहीं नहीं हो है सकता, ना. अदरवाइज इट विल बिकम अ 3 डिजिट नंबर, बट वी हैव टू फॉर्म 4 डिजिट नंबर. तो 0 नहीं हो सकता. तो बच्चे कितने अभी पॉसिबिलिटी कितनी बची अभी? 9 पॉसिबिलिटी. तो 9 नंबर में से कोई भी एक नंबर क्या आ सकता है? इधर आ सकता है. करेक्ट. या यस. अब 9 सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो सपोज इधर आपने कोई भी नंबर डाल दिया, कोई भी नंबर इधर डाल दिया इधर, क्या वो नंबर इधर भी रिपीट हो सकता है? नहीं मैं नहीं हो सकता है ना. तो अभी इसमें से कोई एक नंबर आपने चूज किया होगा फर्स्ट स्लॉट के लिए, उसमें से एक डिजिट चला गया, बच्चे कितने इधर? बच्चे कितने? एक 8 बचा. और ये अभी 0 हो सकता है क्या? सेकंड स्लॉट पे 0 डाल सकते हैं अभी? हाँ अभी हाँ यस, डाल समझा सकते हैं. तो 8 और वो +1 कितना हो गया? 9 हो गया ना. तो सेकंड 9. स्लॉट फिल करने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हो गई? 9 चॉइसेस हो गई. बिकॉज सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं हो सकता, बट आफ्टर ऑल वी कैन पुट, ये भी तो 4 डिजिट नंबर कहलाएगा ना. दिस इज आल्सो 4 डिजिट नंबर, राइट? सो 0 हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ फर्स्ट स्लॉट पे नहीं डाल सकते, बट आफ्टर दैट वी कैन पुट एट एनी स्लॉट. गॉट इट नाउ ज़ैनब? सॉरी, क्या नाम था? या मैम, या Okay. गॉट इट. ओके नाउ, तो अभी 2 डिजिट चले गए, बच्चे कितने अभी? 8. तो टू फिल द थर्ड स्लॉट वी आर हैविंग 8 चॉइसेस. 3 डिजिट चले गए. नाउ टू फिल द लास्ट स्लॉट वी आर हैविंग 7 चॉइसेस लेफ्ट विद अस. अब सबको मल्टीप्लाई कर दो. व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? 9 into 9 into 8 into 7 कितना होता है? मल्टीप्लाई करो. कैलकुलेटर रेडी है आपके मोबाइल में? बताओ कितना आता है आंसर? 4536. 4536. ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर. नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन. The last digit must be 0 and repetitions are not allowed. The last digit must be 0 and the repetitions are not allowed. Who can answer this question? The last digit. Okay, 4 digit number हमें फॉर्म करना है. उसमें से क्या बोल रहा है कि लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट क्या है? 0. 0. मतलब इसका तो पोजीशन फिक्स्ड हो गया कि नहीं? ये पोजीशन फिक्स हो गया कि नहीं बच्चों? या बोल रहा है कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए. एंड एक और कंडीशन दिया है कि रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड. तो 0 से लेकर 9 तक कितना था? 10. उसमें से 0 तो चला गया, बचे कितने? 9. तो ये फर्स्ट स्लॉट फिल करने के लिए आर हैविंग 9 चॉइसेस. सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो सेकंड के लिए कितने हो गए चॉइसेस? 8. 8 हो गए. से अगेन 2 डिजिट 3 डिजिट चले गए. 7. तो फिर द 7. और लास्ट वाले के लिए तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं दिया. आपको एक ही चॉइस है, दैट इज 0. यू ओनली हैव टू पिक, राइट? नो. सो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? 9 into 8 into 7 into 1. तो इसको हम मल्टीप्लाई करो, व्हाटएवर इज द आंसर, that many 4 digit number we can form in which last digit will be fixed, that is 0, and the repetition will not be allowed. तो इसका आंसर कितना आता है? 504. 504. Did you get this, students?
Yeah, 504. Have you all understood this? Have you all understood this problem? Any difficulty you found in this? No, ma'am. ओके तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, कुछ डिजिट्स दिए जाएंगे और आपको बोलेगा कि दिया फॉर्म 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर, बस आपको कुछ कंडीशन दे देगा कि ऑड नंबर फॉर्म करना है कि इवन नंबर फॉर्म करना है, या फिर कुछ डिजिट फिक्स होना चाहिए, कुछ डिजिट्स का पोजीशन फिक्स होना चाहिए, एंड रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड, यही केस रहता है. सो वी आई हैव टेकन सफिशिएंट क्वेश्चन ऑन दीस सो दैट कि आपको समझ में आए कि कैसे हम नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन डिजिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे, फॉर्मिंग एनाग्राम्स. ओके, दैट इज आल्सो आई हैड एक्सप्लेन, बट वन मोर क्वेश्चन आई विल बी टेकिंग, उसकी सारी पॉसिबिलिटी, सारे केसेस कंसीडर करेंगे एंड देन वी गो टुवर्ड्स द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. फॉर्मिंग एनाग्राम्स. सो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. आई जस्ट राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1. दैट एनाग्राम्स का क्या मीनिंग बताया था मैंने लास्ट क्लास में, बताओ. एनाग्राम्स का क्या मतलब बताया था? Combination. Combination. Okay. Who can tell me एनाग्राम्स का मीनिंग क्या बताया था मैंने? Rearranging the letters. Yes, rearranging the letters. Okay, जैसे अभी हमने कोई भी वर्ड दे दो आप मुझे. Give me any word. जैसे एजुकेशन, हमारी स्क्रीन पे अभी एजुकेशन दिख रहा है, ठीक है, या फिर वर्ड्स दिख रहे हैं ना, वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स ही ले लेते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर कितने लेटर्स हैं? हाउ मेनी लेटर्स यू कैन सी? 5. 5 लेटर्स आर देयर. तो आप ये 5 लेटर्स का यूज करके आप कितने डिफरेंट लेटर, कितने डिफरेंट वर्ड्स आप बना सकते हो, डिफरेंट वर्ड्स आप बना सकते हो यूजिंग दीस 5 लेटर्स. इट्स ओके वेदर दे हैव मीनिंग और दे डू नॉट हैव मीनिंग, इट्स ओके. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अगर मैं इसको शफल कर दूं ना, जस्ट रीअरेंज कर दूं लेटर्स को लाइक दिस, और आई कैन राइट लाइक दिस, और आई कैन राइट दिस. ओके, आर दे हैविंग एनी मीनिंग? क्या इनका कुछ मीनिंग निकल रहा है? नो, राइट? मैम टोटल बस 25 होगा ना? सॉरी, टोटल 25 सीक्वेंस निकलेगी ना अगर 25 आएगा वर्ड्स का यू सेइंग नो, वर्ड्स का. ओके, विल सी दैट कि इसको प्रॉब्लम को हम कैसे करते हैं. ओके, 25 आएगा. व्हाट इज योर कैलकुलेशन बिहाइंड इट? हाउ डिड यू कैलकुलेट 25? I calculated 5 words into 5. So there are 5 words. I calculated it into 5. No. Then you understood how we were forming a digit? You can how we were calculate forming it by digit? multiplying. Yes, Yasha, you explain what you were saying. Ma'am, I have a doubt. Like he multiplied that 5 words into 5, but why Uh-huh. only 5? Why not 5 into Uh, 6? I'm not saying his calculation is correct. Okay, why he is multiply 5 into 5? That is also to be understood. No, कि why is he doing that way? Okay, 5 तो मुझे समझ में आया कि because 5 letters are there. Now why he is doing into 5? What is the logic behind it, Zainab? मैं मतलब वो मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ. Okay. So what I was explaining over here, that all of you understood how we were forming a 4-digit number, 3-digit number. Is this was that understood to all of you? या मैम. समझा ना? ठीक है. अभी ये वर्ड्स देखो, वर्ड्स में कितने लेटर्स आपको दिखे? 5. ठीक है, तो चलो हम 5 स्लॉट बना देते हैं उनके लिए. ठीक है, 5 स्लॉट, बिकॉज ये हमको सारे लेटर्स यूज करने हैं ना वर्ड्स के, तो वर्ड्स में 5 लेटर है तो 5 स्लॉट बना देते हैं. ठीक है, और हमें इनको रीअरेंज करना, रीअरेंज करके हम कितने डिफरेंट 5 वर्ड्स बना सकते हैं, दैट वी हैव टू काउंट. ओके, सो 5 लेटर है, तो फर्स्ट स्लॉट फिल करने के लिए कितने चॉइसेस हमारे पास? इट कैन बी W, इट कैन बी O, it can be R, it can be D, or it can be S. So to fill the first slot, how many choices we are having? We are having 5 choices, correct? We are having 5 choices, and we have to form 5-letter word. We have to form 5-letter word. तो उसमें से एक लेटर इधर आ गया, बचे कितने लेटर्स? 4.
हाँ, अभी now to fill the second slot, how many choices we are having? Suppose ये W चला गया, first हमारा जो word हो गया इसमें W आ गया, ठीक है? तो W चला गया, बच्चे कितने लेटर्स? ORDS, ओके? तो उसमें से कोई भी चार में से कोई भी एक आ सकता है सेकंड पोजीशन पे, yes or no? Correct? So to fill the second slot, how many letters we are left with? We are left with 4 letters. So to fill the second choices, we are to fill the second slot, we are having 4 choices left. Okay, तो 2 letter हो गया अभी. Suppose इधर R आ गया, तो 2 letters gone. Now to fill the third slot, how many choices we are having now? 5 में से 2 letter चले गए, बच्चे कितने letters? Hello, Yasha, Zena, where are you? 3 letters. हाँ, so why it is so difficult? You got stuck somewhere, Yasha? No, ma'am, I was calculating ahead. Okay, yeah. But you just understand the concept, okay, Yasha? Understanding the concept is important. Yes, See ma'am. what is happening over here, okay? So since I have to form 5-letter words, so that is why I made this 5 boxes. Now, अभी first box fill करने के लिए मेरे पास कितने letters available है? First letter कोई भी ले सकते हो. I can take W or I can take O or I can take R or I can take D or I can take S. तो इन 5 में से कोई भी एक letter आ सकता है, तो 5 choices है. 5 में से एक letter चला गया, बचे 4. So to fill the second slot, I'm having 4 choices left with me. Now अभी एक और letter चला गया. Now third choices for third slot. Then 3 letters चले गए. 2 choices left for second last, and for last one, I'm left with only 1 letter. Okay, so ये कितना हो जाएगा आंसर? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. किसका आंसर है? Yes, Yasha, correct. ये किसका 120. फॉर्मूला दिख रहा है? किसका फॉर्मूला दिख रहा है? फॉर्मूला में पूछ रही हूँ. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 120 आएगा आंसर, that is there. But ये क्या दिख रहा है? ये किस? You know any of such thing? Vandana, you want to say anything? 5 factorial. Yes, Abuza, you're right. It is 5 factorial. Okay. So इससे हमें क्या समझ में आता है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास 5 लेटर और उनको हमें 5 पोजीशन पे क्या करना है? अरेंज करना है. So that can be done in 5 factorial ways. 5 factorial कैलकुलेट कर लो, 120 आ जाता है. अभी हमारे पास हमने एक क्वेश्चन लिया, इधर ध्यान दो जरा. I had taken one question. अभी इसका आंसर करो. If you have understood this question, this problem, then I answer the question. How many words you can be formed from all the letters of the word education? Education में कितने letters है जरा काउंट करो तो. 9. We are having 9 letters. No, we are having 9 letters, and I have to form the word. I have to form the word from using all the letter of the word education. मुझे एजुकेशन में जितने भी लेटर्स है सारे लेटर्स को यूज करके मुझे 9 लेटर का वर्ड बनाना है. सो दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 9 factorial way. Yes, absolutely right, correct, Zainab. Sorry, I hope I'm pronouncing your name properly. J, not J. J, right? Yeah. So education में हमारे पास 9 letters है, and I have to use all the letters. All right, I have to use all the letters. So that can be done in 9 factorial ways. Do you want to see how it is? So I'll be making how many boxes? How many boxes now? 3, 6, 7, 8, 9. Okay, since I'm having 9 letters in it. To the first slot, how many choices I'm having? 9. 9 में से एक letter चला गया. To fill the second slot, I'm having 8 choices. 2 digit चला गया. 2 letters चले गए ना अभी. First slot भी fill हो गया, second slot भी fill हो गया. 9 में से 2 letter gone. फिर इसके लिए 7 होगा, इसके लिए 6, इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1. तो अगर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका फॉर्मूला बनता है? ये फॉर्मूला बनता है 9 फैक्टोरियल का. ओके, तो जब आपके पास क्या रहेंगे? 9 लेटर्स रहेंगे और 9 लेटर का ही वर्ड बनाना है, तो दैट कैन बी डन इन 9 फैक्टोरियल वेज. सो आई थिंक ये पहला टाइप का प्रॉब्लम समझा. ना सेकंड टाइप का प्रॉब्लम मैं आपको ये बता रही हूँ कि how many different letter words you can form from the letters of education in which A and T are always together. I'll just write on the question so that कि आपको question समझ में आए. Question number 2. How many words? How many words can be formed using
the letters of the word education in which in which the letters A and T are always together. अब ये कैसे करेंगे? Anyone having any idea about it? Shall I explain? Or you want to think over it? Ma'am, we can start by putting A and T in the box first. Okay, suppose I'll just write on the word education. Okay, what are you saying? We'll put You A saying and T. in one box, correct? Yeah. This way? Yeah. करेक्ट. This- सो व्हाट इज द क्वेश्चन? अब वो अब इसमें हमें ये जो भी आप शफल करोगे, ठीक है, अब जो भी शफल करोगे, रीअरेंज करोगे, ठीक है, उसमें ए एंड टी हमेशा साथ में आना चाहिए. मतलब आप ऐसे वर्ड्स नहीं बना सकते हो, मतलब ऐसे आप वर्ड नहीं बना सकते हो जिसमें ए और टी क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए. नो, व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाटएवर, नो मैटर व्हाट अरेंजमेंट यू डू, उसमें ए और टी हमेशा क्या आना चाहिए, साथ में आना चाहिए. You got this question, students? और जो भी है letters left है वो लिखते हैं, ठीक है. तो whatever rearrangement of letters you do of the word education, उसमें A and T should always be together. ऐसे भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि AT हो, ऐसा भी आ सकता है. ओके, but A and T they should always be together. Okay, so did you understand the question? कि question में क्या बोला करने के लिए आपको? So whatever arrangement you do, make sure कि उसमें A and T हमेशा क्या रहे, साथ में रहे. तो जैसे कि ज़ैनब ने बताया वैसे ही हमें करना है. दैट इज A and T, A और T को हम क्या ले लेंगे, एक यूनिट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है. आई एम सॉरी, A और T को हम क्या ले लेंगे, एक यूनिट कंसीडर कर लेंगे. तो इसको हम एक यूनिट कंसीडर करेंगे. तो अब बताओ कितने लेटर्स हो गए आपके पास? 1 2 3 4, ये एक यूनिट है. 5 6 7 8, कितने हो गए बच्चों? 8 हो गए. सो अभी 8 लेटर्स है. अब उनको कितने प्लेस पे अरेंज करोगे, बताओ कितने प्लेसेस पे अरेंज करोगे? 2 3 6 7 8, 8 पोजीशन पे आप उसको क्या करोगे, अरेंज करोगे. बिकॉज ए और टी को हमने क्या ले लिया, एक यूनिट कंसिडर किया. सो व्हाटएवर अरेंजमेंट यू विल डू ना, तो उसमें आप देखोगे कि ए और टी हमेशा क्या रहेंगे, साथ रहेंगे. डू यू ऑल एग्री विथ मी? What, ma'am? नॉट पेइंग अटेंशन ना. what I Ma'am, said कि A Father and was T calling. हमेशा, A और T हमेशा हमेशा साथ में चाहिए हमें, right? I want them together always. So what I'm considering it as a unit, तो आप जो भी शफलिंग करोगे, सब शफलिंग करोगे तो ये एक यूनिट है ना. तो जहाँ पे भी आप जो भी शफलिंग करोगे इसमें डोंट यू थिंक सो कि A और T हमेशा क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे? यस और नो? तो सपोज ये A T एक यूनिट है, देन शफलिंग कर दिया, ऐसा आएगा कि नहीं? करेक्ट, क्योंकि एटी तो एक साथ एटी क्या है, एक यूनिट है. तो अब जो भी आप शफलिंग करोगे तो उसमें एटी क्या रहा है, हमेशा साथ में आएगा. आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग? हेलो? Yeah, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so what I was explaining कि whatever arrangement you do, make sure कि उसमें A और T क्या आ जाए, साथ में आए. That is I'm considering it as one unit. Okay, तो एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है, ऐसा भी आ सकता है ना. Since AT is one unit, तो A और T क्या हो जाएगा, साथ में आ जाएगा. So this is what I'm talking about. So हमारे पास अभी 9 लेटर्स ना हो के अभी हमारे पास कितने लेटर्स हो गए, 8 लेटर्स. Why 8 लेटर्स? How come 8 लेटर्स? 8 लेटर्स कैसे हो गए मेरे पास, बताओ. 1 2 3 4, हाँ, बिकॉज तुमने दो लेटर को एक यूनिट कंसिडर किया. 5 6 7 8, और 8 लेटर्स को हमको अरेंज करना है 8 पोजीशन पे. इन हाउ मेनी वेज दैट कैन बी डन? 8 factorial ways. That can be done in 8 factorial ways. Okay, because 80 हमने एक यूनिट कंसिडर किया है, तो ये दो लेटर क्या हो जाएंगे, एक के लाएंगे. So 8 letters we have to arrange at 8 positions, so that can be done in 8 factorial ways. But what I was saying कि आप A and T लिखो या फिर T into A लिखो, करेक्ट हो? ये A T आपस में भी अरेंज होंगे ना. इसमें भी A और T क्या है, साथ में है कि नहीं? A T लिखो या फिर T A लिखो, साथ में है कि नहीं A and T? Yes or no?
Yes. करेक्ट. सो ए और टी भी क्या होंगे, आपस में अरेंज होंगे. सो दो ही लेटर है तो दो लेटर का दो पोजीशन पे अरेंजमेंट होगा एंड दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज. दो लेटर है ए एंड टी, उनको भी अरेंज करना होगा तो उनके लिए दो पोजीशन रिक्वायर्ड होगा. सो टू लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन टू पोजीशन इन हाउ मेनी वेज, टू फैक्टोरियल वेज. यस और नो? ये टू फैक्टोरियल कैसे आया बताओ, कोई कोई बताएगा मुझे. टू लिखना चाहिए कि टू फैक्टोरियल लिखना चाहिए? So the answer is 8 factorial. So ये हो गया हमारे एजुकेशन के लेटर का अरेंजमेंट एंड ए एंड टी का अरेंजमेंट. तो आई हैव टू डू बोथ द अरेंजमेंट, so that is why multiplication will come. So इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, whatever is the answer, so that many words you can form in which the letters A and T will always be together. Now I'm taking third type of question. Third type में मैं ले लेती हूँ. Suppose how many words you can form in which the cat word should always be together. अब इधर लेटर की बात नहीं कर रहा, इधर कैट वर्ड की बात कर रहा है. कैट वर्ड शुड ऑलवेज बी देयर. कैट वर्ड शुड ऑलवेज बी देयर. तो अभी क्या करोगे? हाउ विल यू डू दिस प्रॉब्लम? हाउ विल यू डू दिस प्रॉब्लम नाउ? बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म इन व्हिच द कैट वर्ड should always be there. We will put cat in the box first. Okay, Then so we cat will को हम count the एक, rest of the numbers. यस, तो इसको हम एक यूनिट कंसिडर कर लेंगे. ठीक है, अभी बचे कितने लेटर्स? 1 2 3, दिस इज 4 5 6 7. करेक्ट नो? 7 हो गए. Yeah. तो 7 लेटर्स हो गए. 7 पोजीशन पे अरेंज करना है तो दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 7 factorial way. 7 फैक्टोरियल वेज. बट मुझे सी एंड टी को भी अरेंज करना पड़ेगा क्या? सी एंड टी को भी Ma'am, आपस में अरेंज करना पड़ेगा क्या? CAT का हम लोग ये ऐसे कर सकते हैं ना, 3 into 2 into 1 नीचे. बट करेंगे Denominator क्या? में. नाउ सी, पहला क्वेश्चन में था कि लेटर्स ए एंड टी शुड बी टुगेदर, बट इधर क्या बोल रहा है कि द वर्ड कैट शुड बी देयर. तो कैट एज इट इज आना चाहिए. तो क्या करोगे? कैट को अरेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड द डिफरेंस. लेटर्स शुड बी टुगेदर एंड द वर्ड शुड बी देयर. डिफरेंस है. यस, व्हाट डू यू थिंक? यस शाह, व्हाट डू यू थिंक? कि कैट को भी आपस में रीअरेंज करेंगे क्या? कैट के लेटर्स को भी आपस में रीअरेंज करेंगे? नहीं मैम, वो ऐसे ही रहेगा cat. वो ऐसे ही रहेगा बिकॉज हमें बोला है कि कैट वर्ड शुड बी देयर. तो कैट CAT ऐसे ही रहना चाहिए. तो इसका आप कोई भी अरेंजमेंट नहीं करोगे. अगर बोला होता है कि लेटर्स ऑफ लेटर C एंड T शुड ऑलवेज बी टुगेदर, तो आप इसको आपस में रीअरेंज करते थे. ठीक है, मैं अभी फोर्थ क्वेश्चन वही लेती हूँ. इसका आंसर आता है 7 फैक्टोरियल. अब मैं आपको बोलूँगी लेटर्स C, A and T should be together. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो अगेन कैट को क्या करोगे? एक यूनिट कंसिडर करोगे ना. करेक्ट. एजुकेशन लिख देती हूँ पहले. एजुकेशन. ठीक है, तो इसको हम एक यूनिट कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज ये जहां पे भी जाने चाहिए साथ में जाने चाहिए. तो ये एक यूनिट कंसिडर होगा. ठीक है, देन कितने लेटर्स हो गए? 1 2 3, दिस इज 4 5 6 7. 7 letters हो गए. 7 letters in 7 position that can be done in 7 factorial ways. But ये लेटर CAT आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं. CAT को I can add TAC also, right? या फिर ACT also, right? तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे? अरेंज होंगे. So 3 letters in 3 position कितने ways में अरेंज हो सकते हैं? 3 letters in 3 position. 3 factorial ways, absolutely right. So 3 factorial ways. So I have to do this 27 arrangement ways. as well as, sorry 27 के क्वेश्चन बोला मैंने. 7 factorial into 3 factorial आएगा. 73 factorial नहीं आएगा. ये 7 factorial हो गया हमारे पूरे लेटर्स का अरेंजमेंट. और ये 3 factorial है वो किसका अरेंजमेंट है? C and T का अरेंजमेंट है. So multiplication will come. Okay. Now what if one last question, one last problem. ये एक और टाइप का क्वेश्चन आता है. How many different letters words you can form in which all the vowels should be together? All the vowels should be together. Come on, now you should be able to answer this question. Now, all the vowels should be together. Think over this question. way. Think properly.
I want correct answer. 5 factorial half correct है. Half, what is half wrong? Identify. All the vowels should be together. क्या करोगे, कैसे करोगे? Who will explain? Okay, getting the answer. Zara is saying कि A, I, O, U को. Okay. So इसके अंदर vowels क्या क्या है? A है, E है, I है, O है और U है. ये 5 vowel को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? एक यूनिट कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है. इन सबको हम क्या करेंगे? एक यूनिट कंसिडर कर लेंगे. ठीक है ना? बच्चे कितने लेटर्स अभी? ये हो गया एक यूनिट. फिर ये सेकंड यूनिट 2 और 3 एंड बट कितने लेटर्स हो गए? 1 2 3 4 5 5 letters in 5 position can be arranged in 5 factorial ways and we have to arrange these ये letters को भी हमें क्या करना पड़ेगा? आपस में अरेंज करना पड़ेगा. सो ये जो vowels है उनको भी अरेंज करेंगे ना. सॉरी 4 factorial है. कितने vowels दिख रहे हैं? 5 vowels दिख रहे हैं ना. 5 vowel and 5 factorial. 5 factorial. So इसलिए आंसर इज व्हाट? 5 factorial into 5 factorial. तो सिर्फ आपको ये एक यूनिट कंसीडर करने से आपका काम खत्म नहीं होता है. आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना और ये जो लेटर्स आप जो एक यूनिट कंसीडर कर रहे हैं ना वो भी आपस में अरेंज होंगे. सो सिर्फ आप इनको अरेंज करके छोड़ना नहीं है, इनको भी अरेंज करना. भाई इन्होंने कोई पाप किया है क्या? इनको भी अरेंज करो आपस में. सो तो इसलिए 5 factorial into 5 factorial आता है. Got it? I hope so. I have taken all the types of problem on which the question comes. 5, no? 4 factorial how? 4 D, मैम factorial. 4 था ना, DCTN. DCTN ना, DCTN 4 और ये जो सारे वॉवेल्स को एक यूनिट कंसीडर किया वो मिला के हो गया 5. राइट Okay, नो? ma'am. वो राइट. वॉवल्स का सारे 5 और vowels- वो सब मिलाकर भी 5 से. लिसन देन अप, लिसन. तो वॉवेल्स को छोड़ दो, वो सारे वॉवेल्स को कंसीडर किया, उसको हम क्या कंसीडर करें? एक यूनिट हो गया. सारे वॉवेल्स एक साथ ले लिया, वो एक यूनिट हो गया, एक काउंट हुआ अभी. ठीक है, एक लेटर काउंट होगा वो. देन डी सेकंड, सी थर्ड, टी फोर्थ एंड 5. ये 5 लेटर 5 पोजीशन में कैन बी डन इन 5 फैक्टोरियल वेज. ओके, बट ये जो सारे वॉवेल्स आपने एक साथ लिए हैं उनको भी आपको अरेंज करना है फर्दर. तो उससे आप वॉवेल कितने हैं? 5 एंड 5 पोजीशन पे आप उसको अरेंज कर पाओगे. ऑब्वियसली 4 पोजीशन पे किधर अटकाओगे उसको? तो 5 लेटर 5 वॉवेल है, 5 पोजीशन लगेगा. दैट कैन बी डन इन 5 फैक्टोरियल वेज. सो 4 तो किसी तरीके से मुझे नहीं दिख रहा इधर. गॉट इट बोथ ऑफ यू? Yes, ma'am. Okay, so this was about forming the anagrams. So इसमें सारे letters different है. What if letters are repeated? Suppose ले लेते हैं, मैंने yesterday I had taken one question. No, क्या लिया था मैंने question? Suppose Bob ले लेते हैं. Bob. Bob. तो क्या बोलोगे? कितने letters हैं? How many different words you can form by using the letters of the word Bob? तो 3 लेटर है, 3 पोजीशन, तो आंसर आएगा 3 factorial. Is this the correct answer? 2 factorial. लेट्स सी कि अगर इसका सपोज ये फर्स्ट बी को मैं ले लेती B1 और सेकंड बी को ले लेती B2. चलो इसके अरेंजमेंट लिखते देखते कितने अरेंजमेंट होते हैं. तो पहला अरेंजमेंट होगा B1 देन B2 देन O, या फिर हो सकता है B1 O B2, या फिर B1 B2 सॉरी B2 B1 O, या फिर B2 O B1. करेक्ट नो? सारे अरेंजमेंट डिफरेंट है कि नहीं? B1 B2 O B1 O B2 B2 B1 O B2 O B1. अब क्या करें? जो सबस्क्रिप्ट हमने लगाया था इसको जरा हटा दो. सॉरी ये तो पूरा हट गया. ये सबस्क्रिप्ट हमने लगाया था 1 एंड 2 उसको उसको हटाना. ठीक है, अब मुझे बताओ कि अरेंजमेंट सेम लग रहा है कि डिफरेंट लग रहा है? सेम. तो अरेंजमेंट तो सेम लिख रहा है. ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट तो सेम ही लग रहा है. ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट तो सेम ही लग रहा है. तो आर यू गोइंग टू काउंट इट 2 टाइम्स और 1 टाइम? 1 time. वन टाइम काउंट करोगे. राइट. तो हम क्या करते हैं, जो जितने लेटर्स हैं उतना अरेंजमेंट पॉसिबल तो होगा, बट जितनी बार रिपीटेड होगा उतनी बार सब डिवाइड कर दोगे. सिंस डी वाज रिपीटेड 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल को आई कैन राइट 3 into 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल विल गेट कैंसिल. आंसर आएगा 3. वांट टू चेक हाउ?
BOB है ना, तो पहला तो यही अरेंजमेंट हो जाएगा, दूसरा क्या हो सकता है OBB हो सकता है, या फिर BBO हो सकता है। तो यही 3 अरेंजमेंट पॉसिबल है इसके अलावा कोई अरेंजमेंट बता सकते हो तो बता दो। बॉब का कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है आपको लगता है तो आप बता दो जरा। डू यू थिंक सो और कहीं और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है शफलिंग करके रीअरेंज करके? नहीं, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है कि 3 पॉसिबिलिटी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं सारे लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं और आंसर भी कितना आता है 3 आता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। बताओ हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स यू कैन फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। हाउ मेनी डिफरेंट लेटर्स वर्ड्स यू कैन फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। कितने लेटर्स है बताओ? कितने लेटर है? 11। 11। सो 11 फैक्टोरियल हो जाएगा, बट उसमें से जो रिपीटेड है उतनी बार से हम डिवाइड कर देंगे। तो इधर एस कितनी बार रिपीट हुआ है 4 टाइम्स, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। और आई भी रिपीट हुआ है, आई कितनी बार रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, तो अगेन यू विल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। एंड 2 is repeated, p is repeated 2 times, so you will divide it by 2 factors। तो बस अब इसको सॉल्व करो, that would be the answer। तो अगर लेटर्स रिपीट हुए रहेंगे तो आई होप दैट इज अंडरस्टूड कि कैसे करना है वर्ड्स, कैसे फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स यू कैन फॉर्म फ्रॉम द letter from the word containing repeated letters। Got it? Yeah, ma'am. Okay, now next question is on forming arranging people, third type, arranging people, then we'll go to the permutation and combination। Okay, so suppose you are having 5 people, okay, then you are having 3 chairs and you have to Yes, arrange ma'am. them। So in how many ways you can arrange them? So you are Arranging having 5 people in 3 box. yes, yes, 3 chairs, suppose ये 3 chairs हैं, ठीक है, इनको चेयर्स पे अरेंज करना है। 5 लोग हैं, 3 चेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली 3 ही लोग बैठ पाएंगे, वो बात है, मतलब एक चेयर पे 2 लोगों को नहीं बिठाना। सो हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? ओके, सपोज फॉर एग्जांपल सिंपलिसिटी हम थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं, ABC आर 3 पर्सन, ओके, 3 people are there, okay, and I have 2 chairs, I have 2 chairs, I have to arrange them। सो कोई 2 ही आ सकता है ना, 3 में से कोई 2 ही पीपल आ सकता है, कोई 2 ही पर्सन आ सकता है ये चेयर पे, राइट? सो सपोज मैंने A एंड B को चूज किया, A एंड B को चूज किया मैंने। सो उनका अरेंजमेंट क्या हो सकता है? इधर आई कैन फर्स्ट प्लेस पे A को बिठा सकते हैं, सेकंड प्लेस पे B को, या फिर फर्स्ट प्लेस पे B को बिठा सकते हैं, सेकंड प्लेस पे A को। करेक्ट नो? तो ये 2 चॉइसेस मिल गई आपको। सपोज मैंने A एंड B को, सपोज किसी और ने A एंड C को चूज किया, तो उसके लिए भी अरेंजमेंट यही हो सकता है ना। तो अगेन यू गॉट हाउ मेनी चॉइसेस? 2 चॉइसेस। एंड कोई और क्या हो सकता है? B एंड C को उठा सकता है, तो ये चॉइसेस हो गई, राइट? नो, अगेन यू गॉट हाउ मेनी चॉइसेस? 2, तो टोटल 6 चॉइसेस है। So is there any the shortcut way to find out all the how many different arrangements are possible? Yes, इधर 5 लोग थे, 3 चेयर्स है, तो कहते तो फर्स्ट प्लेस पे कोई भी एक आ सकता है ना, तो 5 में से कोई भी एक ये फर्स्ट चेयर पे आ सकता है। तो how many choices we are having to fill the first place? 5 choices, which is like forming 3-digit number and given 5 digits। So पहले चेयर पे कोई भी 5 में से एक बैठ सकता है, ओके? तो जो भी पर्सन ये चेयर पे बैठा है, क्या वो ये चेयर पे आएगा वापस से? नहीं, राइट? तो 5 में से एक गया, बचे कितने? 4। तो 4 में से कोई भी एक क्या हो जाएगा? ये प्लेस पे आ जाएगा, राइट? तो वी आर हैविंग 4 चॉइसेस। एंड फॉर द थर्ड चेयर बचे कितने लोग हैं? 3 में से कोई भी एक क्या हो जाएगा? ये थर्ड चेयर पे आ जाएगा। तो यू नो कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं? मल्टीप्लाई कर दो, 5 into 4 into 3 is 60। तो 60 चॉइसेस यू आर हैविंग, ओके? सो तो इसमें परमुटेशन कैसे हेल्प करेगा स्टूडेंट्स? ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड। ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज करके भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सी हाउ। नाउ विल कम टू द कांसेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो परमुटेशन के बारे में आपको क्या पता है बच्चों? Nothing, ma'am. परमुटेशन मतलब, हाँ कोई बात नहीं, तो परमुटेशन इतना तो पता होगा कि अरेंजमेंट होता है, राइट? जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा सीटिंग अरेंजमेंट देखा, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन।
ठीक है, तो अगर हमें लोगों को अरेंज करना है तो ओके, ऑब्वियसली तो इसमें ऑर्डर मैटर करेगा कि नहीं, कि फर्स्ट प्लेस पे कौन बैठा है, सेकंड प्लेस पे कौन बैठा है, थर्ड प्लेस पे कौन बैठा है, राइट। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं बच्चों की, सपोज यू नो मैं किसी आइसक्रीम शॉप पे जाती हूँ एंड मैं वहां से क्या लेती हूँ, 2 आइसक्रीम पिक करती हूँ, एक वनीला एंड एक चॉकलेट, ठीक है। So either the first person will get vanilla and the second person will get chocolate, या फिर या तो either first person will get chocolate or the second person will get vanilla, right? So when I'm putting the condition, no, तो मतलब मुझे क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, क्या करना है हमें, अरेंजमेंट करना है। सो ये इसमें क्या हो रहा है, दोनों सेम है या डिफरेंट है। First person is getting vanilla in the first case and first person is getting chocolate in the second case. Are they same or they're different? Different. They're different. तो अरेंजमेंट में क्या होता है, जब आपको कुछ कंडीशन दिया रहेगा, दैट मींस यू हैव टू डू अरेंजमेंट एंड इन व्हिच ऑर्डर मैटर्स। इसमें ऑर्डर क्या करता है, मैटर करता है, ठीक है। बट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इट इज जस्ट अ सिलेक्शन। मतलब अगर मैं सिर्फ बोलूं कि आई हैव टू चूज ओनली 3 पीपल आउट ऑफ 5, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कि मुझे क्या करना है उन 3 लोगों के साथ, ओके। आई हैव टू जस्ट 3 पीपल, आई हैव टू जस्ट सिलेक्ट 3 पीपल आउट ऑफ 5। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे CR position लेना या ACR position लेना या ऐसा, तो I'm not saying anything. I'm just saying कि I have to select 3 people out of 5. So that means it is a case of combination. तो क्या इसमें order matter करता है? I just have to select 3 people. तो इसमें order matter नहीं करता, order doesn't matter. But अगर मैं बोल दूं कि I have to choose, you know, person for CR, ACR and for SR position, CR, ACR and ये अभी आपका सिलेक्शन हुआ रहेगा ना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, असिस्टेंट क्लास रिप्रेजेंटेटिव, स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव, ओके। तो जब मुझे 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने और उनको पोजीशन असाइन करनी है, तो इन दैट ऑर्डर क्या करेगा, मैटर करेगा, राइट। टू सपोज फर्स्ट को मैंने क्या दे दिया, सीआर पोजीशन दे दिया, सेकंड को मैंने दे दिया एसीआर पोजीशन, थर्ड को मैंने दे दिया ऐसा पोजीशन। दिस अरेंजमेंट इज डिफरेंट देन यू नो बी को सीआर के पोजीशन पर डाला, सी को एसआर के पोजीशन पर, एसीआर के पोजीशन पर डाला एंड ए को एसआर के पोजीशन पर डाला। ये दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट है कि नहीं, ये दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट है कि नहीं, या ओके। तो जब आप कोई चीज सिलेक्ट करने के बाद आप उस पर कंडीशन अप्लाई करते हो, दैट मींस इट इज अ केस ऑफ अरेंजमेंट। इसमें ऑर्डर मैटर करता है, तो ऑर्डर मैटर करता है मतलब आपको परमुटेशन यूज करना है। एंड सिलेक्शन में जब आपको चूज करने के लिए बोला है, कुछ कंडीशन नहीं बोला है कि उसके बाद आप क्या करने वाले हो, दैट मींस इट इज अ केस ऑफ सिलेक्शन, तो आपको कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। सो हाउ डू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन? सो सपोज यू आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट, ओके, एन ऑब्जेक्ट एंड आपको सिलेक्ट करना ओनली आर आउट ऑफ दैट। क्या करना है, you have to arrange only R of them. So in how many ways you can do that? That can be done in NPR ways. Okay, so what is the formula of NPR? It is n factorial upon n minus r factorial. जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन था कि we were having 5 people and मुझे कितने लोगों को अरेंज करना था, only 3 of them I had to arrange. No, so that can be done in how many ways? 5p 3 ways that can be done. मतलब 5p3 जो भी वैल्यू आएगा, दैट मेनी वेज वी कैन अरेंज 3 पीपल आउट ऑफ 5 ऑन 3 चेयर्स। तो 5p3 कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करो। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 इट इज 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कैसे करते हैं आगे बताओ। 5 फैक्टोरियल को अब क्या करो, 5 into 4 upon 2 into 1 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल, बिकॉज नीचे 2 फैक्टोरियल तक 2 फैक्टोरियल तक स्प्लिट करते जाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 into 4 is 20, 20 into 3 is 60। और इसका भी आंसर हमें आई थिंक 60 आया था, इसका आंसर हमें 60 आया था कि नहीं, करेक्ट? नो, अंडरस्टूड? Yes, ma'am, a little bit. ओके, सो दिस इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन। तो जब हमें क्या करना हो, अरेंज करना हो, ओके। तो सपोज एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम परमुटेशन पे, ओके, सिलेक्शन पे ले लेते हैं, ठीक है। सपोज यू आर हैविंग कॉम्बिनेशन, अभी समझ लेते हैं कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला हम देख लेते हैं, देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड देन स्टॉप। कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। सपोज देयर आर 3 पीपल, ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, यू नो, टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट क्या होता है कॉम्बिनेशन का। तो आई एम टेकिंग ओनली 3 पीपल, ओके, एंड आई हैव टू चूज ओनली 2 ऑफ देम। कितने लोगों को चूज करना है? सपोज ये अभी कितने स्टूडेंट्स है मेरे पास, एक तान्या है, देन एक यशा है, एंड एक ज़ैनब है, ठीक है। I have to choose only 2 of them, ठीक है। तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी,
Either I can choose Tanya and Yesha, correct? या फिर ये तान्या और येशा बोलो या फिर येशा एंड तान्या, आर दे डिफरेंट और दे सेम? I'm just saying, I'm Same. just choosing two people, they are same. So either you call Tanya first and then Yesha, or you call Yesha first and then Tanya. At the end, who is going to be selected? Only these two girl will be selected. So इसमें order matter नहीं करता है कि in which order you are writing them, okay? Or I can select Tanya and Zainab, or I can select Yesha and Zainab, okay? So कितनी choices होगी? Only 3 choices और 3 possibilities आते हैं. और कोई possibility है क्या? आपको कोई लग रहा है कि और कोई possibility हो सकती है? No, ma'am. No, ma'am. No, right? So यही possibility है, right? So either you can go with Tanya and Yesha, or you can go with Tanya or Zainab, or you can go with Yesha and Zainab, and no, in which order you are selecting them, that doesn't matter. Okay, we are just selecting, we are just choosing 2 people out of 3. तो जब हमारे पास n objects होते हैं and have to select only r of them, हमें क्या करना है? सिर्फ r ही लोगों को select करना है. So that can be done in NCR ways. That can be done in NCR ways. What is the formula of it? N factorial upon R factorial up into N minus R factorial. Okay, ऐसे ये प्रॉब्लम के लिए बताओ, ये प्रॉब्लम में n कितना था और r कितना था? ये क्वेश्चन के लिए n कितना था और r कितना था? ये जो क्वेश्चन हमने लिया तान्या, यशा और जैनब का, n कितना है और r कितना है? How many people are there? Tanya, Yesha, Zainab, मतलब n मतलब का total number of objects. 3. 3. और मुझे कितने लोगों को चूज करना था? That is r. 2. So in how many ways I can choose 2 people out of 3? So that is 3C2 ways. अब 3C2 कैलकुलेट करो जरा, कितना आएगा 3C2? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल ऊपर लिखेंगे, देन नीचे क्या 2 फैक्टोरियल एंड देन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, कितना होगा 1 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व कैसे करोगे अभी? सो 3 फैक्टोरियल करेक्ट, एंड नीचे 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल, आंसर कितना आएगा 3. और आई थिंक हमें इधर आंसर भी क्या मिला था? 3 मिला था कि नहीं? गॉट इट? तो मैं आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे एक्सरसाइज दे रही हूँ अभी, अब भी आपको सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है, ठीक है? So calculate this. 10p5, first one. 7c3, third question. 5p5. 10c7. 5c4. And lastly 5c5. Chalo, I'm giving you all 2 minutes. Everyone should calculate this and let me know the correct answer. 2 minutes, after 2 minutes, no cheating. If you all get the answer, you can put up in the chat box.
Done, students? 2 minutes. What is the answer of the first question? 10p5. Anyone calculate it? What is the answer of 10p5? स्टूडेंट्स फॉर्मूला अप्लाई करो एनपीआर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? यशा, तान्या, n where are you फैक्टोरियल guys? अपॉन r फैक्टोरियल फिर ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल. वेरी गुड ज़ैनब. भैया परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि कॉम्बिनेशन अप्लाई करोगे? परम्यूटेशन का है. परम्यूटेशन का one फॉर्मूला में. क्या होता है? सी यार, व्हाट इज द फॉर्मूला? n factorial upon n minus r फैक्टोरियल, राइट. बताओ व्हाट शुड आई राइट? कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5 फैक्टोरियल आएगा नीचे. अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial upon 5 factorial. This and this will get cancelled. इसको मल्टीप्लाई करके whatever is the answer, ये 10p5 का वैल्यू होगा. 7c3 कैलकुलेट करो. कैसे किया 7c3? What is the answer of 7c3? इसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे? मैम फर्स्ट वन का 30,240 आ रहा है आंसर. 30,000 240. ओके. 7c3 बताओ कैसे निकालोगे? इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि परम्यूटेशन? combination. Yes. So what is the formula of combination? 7c3 is there. क्या रहेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या रहता है एनसीआर का? जस्ट राइट डाउन ओवर हियर. एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. तो देखो फॉर्मूला भी अभी मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा है, जरा अप्लाई करो और बताओ क्या आएगा आंसर. न्यूमरेटर में क्या आएगा वो बताओ. चलो न्यूमरेटर में क्या आएगा? मैम 3 फैक्टोरियल. ओ सॉरी, न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में 3 फैक्टोरियल आएगा. नो 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 7 7 फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल yes into then 4 factorial. yes into 4 factorial. Now how to solve it further? तो 7 फैक्टोरियल को आप स्प्लिट 7 करोगे ना. 7 into 6 into मतलब 3 तक करना है. 4 फैक्टोरियल तक कर लेते हैं ना, क्योंकि 4 फैक्टोरियल लेना है डाउन में. तो वी कैन डू 3 फैक्टोरियल को आई कैन राइट 3 into 2. 4 फैक्टोरियल आई विल कीप इट एज इट इज एंड दिस विल बी कैंसिल. 3 into 2 is 6 एंड ये भी 6 है. तो आंसर आता है 35. इज दिस अंडरस्टूड? या मैम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5p5. ये तो बहुत सिंपल है. मैं एनपीआर का फॉर्मूला भी लिख देती हूँ इधर. एनपीआर क्या होता है? n factorial upon n minus r factorial. चलो बताओ. You should not take more than 30 seconds. Come on. Tell me इसका आंसर क्या आएगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा? मैम 0 हो जाएगा. हाँ पहले बताओ तो उसे न्यूमरेटर में क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल 5 factorial upon 5 minus 5 0. 0 factorial. 0 factorial का वैल्यू कितना होता है? 0 0 factorial is 1. 1 है. 0 factorial का वैल्यू होता है 1. तो डिनोमिनेटर 1 हो गया. न्यूमरेटर ही हमें सॉल्व करना है. न्यूमरेटर कैसे सॉल्व होगा? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो आंसर कितना आ जाएगा? 120. Got it? So Yeah, these ma'am. 3 questions are for homework. Take the screenshot, all of you.
and do let me know the answer of these questions in the next lecture. You Yeah, getting ma'am. it? How to solve it? Yes. These two questions we shall be taking today, and Yes. then we'll stop. Okay. Question number 1 and then question number 2. Let us answer the question number 1. In how many ways can a committee of 5 people be chosen out of 9 people? अब बताओ ये question permutation पे कि combination पे? Combination. Absolutely right. तो बताओ इधर n क्या है और r क्या है? N मतलब 9. total N number. is Yes. और कितने लोगों को choose करना है? That is r. 5 R. 5. So that can be done in how many ways? Therefore, a committee of 5 people. A committee of 5 people be chosen out of 9 people in how many ways? Tell me, what should I write? In मैम वो फॉर्मूला लिखना है ना अभी. 9C5 ways. आंसर क्या दोगे आप? 9C5. 9C5 इज द वैल्यू जो आपको वैल्यू देगा. अभी आपका एक एक चीज कैलकुलेट, यहाँ पे सारे एलिमेंट तो लिखते नहीं बैठ सकते ना. So we have formula. So ये just 9C5 ways calculate करो. That many ways are possible to choose 5 people out of 9. Okay, so 9C5 calculate करो. कितना हो जाएगा? 9 factorial upon 5 factorial. 9 minus 5 is 4 factorial. Just solve it and you will get the answer. 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial को हम stop कर देंगे. Then नीचे भी 5 factorial आ जाएगा. 4 factorial को हम further solve कर सकते हैं. 4 into 3 into 2 into 1. This and this will get cancelled. 4 into 2 is 8. ये cancel हो जाएगा. ये इससे cancel हो जाएगा. So बचा क्या? 9 into 7 into 2. अब इसको solve करो. Whatever is the answer. That many 5 people can be chosen out of 9. अभी ये question number 2 who will answer? Let's see. From 7 consonants and 5 vowels. कितने consonants हैं? 7. Yes. That's 7 consonants. And how many vowels? 5. 5 vowels है, ठीक है? What is the question? How many words can be formed consisting of 4 different consonants and 3 different vowels? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या बोल रहा है आपको? आप how many words you can form? आप कितने वर्ड्स बना सकते हो? उस वर्ड में क्या होना चाहिए? कितने कॉन्सोनेंट्स और कितने वोवेल होने चाहिए? 4 कॉन्सोनेंट होने चाहिए और 3 वोवेल होने चाहिए. तो बेसिकली कितने लेटर का वर्ड बनाना है हमें? कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 7 लेटर्स का वर्ड बनाना है. 7 लेटर्स का वर्ड हमें बनाना है. 5 6 7. ठीक है. उसमें से कितने कॉन्सोनेंट होने चाहिए? कितने कॉन्सोनेंट चूज करने हैं हमें? 7 कॉन्सोनेंट में से कितने कॉन्सोनेंट चूज करने हैं? 4 कॉन्सोनेंट क्या करने हैं हमें? चूज करने हैं. सो इन हाउ मेनी वेज दैट कैन बी डन? इन हाउ मेनी वेज? कितनी पॉसिबिलिटी कि आप 4 कॉन्सोनेंट चूज करो फ्रॉम द 7 आउट ऑफ 7? दैट इज 7C4. यस और नो? यस और नो? कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी वो कौन बताएगा आपको? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताएगा कि नहीं? आपको इधर चूज करना है. दैट मींस यू हैव टू यूज कॉम्बिनेशन. You are having 7 consonants. You have to choose 4 out of them. So you are going to apply the formula of combination. And you have to choose vowel also. आपके पास total vowel है 5. कितने choose करने हैं आपको? उसमें से 3 choose करने हैं. So बताओ कितनी possibility है, कितनी choices है आपको, आपके पास? To choose 3 vowels out of 5. कितनी choices है आपके पास? क्या यूज करोगे? परमुटेशन यूज करोगे कि कॉम्बिनेशन? हेलो, व्हाट हैपेंड? ऊपर से आ रहा है क्या? हेलो, हेलो, एनीवन इज देयर? Yes, ma'am. हाँ, आई एम सेइंग समथिंग. सो आपको क्या बनाना है? वर्ड बनाना है.
उस वर्ड में कितने कॉन्सोनेंट होने चाहिए? 4 कॉन्सोनेंट होने चाहिए और 3 वॉवल्स होने चाहिए। टोटल कॉन्सोनेंट आपको कितने दिए हुए? 7 कॉन्सोनेंट्स दिए हैं, उसमें से आपको 4 ही चूज करने हैं। तो आप कैसे चूज करोगे? क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे? परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे या कॉम्बिनेशन अप्लाई करोगे? कॉम्बिनेशन Combination. अप्लाई करेंगे ना, बिकॉज चूज करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमने सिलेक्ट करेंगे तो हमने इसलिए हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया। Again, I have to choose 3 vowels out of 5, so that can be done in 5C 3 ways. चूज हो गए ना, 4 कॉन्सोनेंट चूज हो गए और 3 वॉवल्स चूज हो गए, तो 7 लेटर्स मिल गए। अभी अब 7 लेटर्स को आपको अरेंज करना है कितने पोजीशन पे? 7 पोजीशन पे ना। अभी लेटर्स चूज कर लिया आपने, 4 कॉन्सोनेंट चूज कर लिया, 3 वॉवल्स चूज कर लिए। अभी यूजिंग दोज लेटर्स यू हैव टू फॉर्म दी वर्ड्स। तो 7 letters are 7 position है, तो in how many ways you can arrange them? अरेंज करना है आपको, so that can be done in how many ways? 7 letters है आपके पास, so that can be done in 7 factorial ways. तो this is the answer. तो आपने पहले चूज किया, फिर आप उसको अरेंज कर रहे हो, तो अरेंजमेंट तो आपको आते ही अच्छे से कि कैसे करते। जब अगर 7 लेटर्स आपको 7 पोजीशन पे अरेंज करना है, so that can be done in 7 factorial ways. तो ये कैलकुलेट करोगे whatever is the answer coming for this, so that many words you can form in which 4 consonant and 3 vowels will be present. All right. So I have taken all the basics which is needed for you all to understand कि counting क्या होता है and permutation combination का formula कैसे use करना। Obviously these questions are not sufficient because जो competitive examinations में आते हैं बहुत limited time होता है और आपको बहुत like आपका brain बहुत fast work करना चाहिए, understand करना चाहिए कि कैसे करेंगे। So I would suggest that you all take up more questions, like you can get it from anywhere. You just type all Chrome पे भी type करोगे कि ना question of permutation combination, list of questions you will get online. So take those questions, solve it by yourself. Solution also you can see solutions we provide किए रहते हैं। सब solutions भी देखो and see whether you're able to do it or not, because these topics are very important. बिकॉज ये आपके कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाओ, सीपीटी के लिए आप प्रिपेयर करो, सीए कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आप प्रिपेयर करो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, सो ये टॉपिक पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं स्टूडेंट्स। So I would suggest that you all practice this question, master this topic. Okay, so this was the basic question. The lectures videos I've uploaded on YouTube. You all can refer my channel, and the link is also I have shared in the group. So you can refer that link for for self learning. So yeah, that's it from the permutation and combination topic. Thank you.